Very good late evening, dear friends. 17th February 2026, Tuesday, an excellent evening. Am now present amongst all of you, dear friends, exclusively musician and music lovers. Just at the moment, I decided to share very important subjects related to glossary of Hindustani classical music. If I say in Hindi version, I would also love to share glossary of Indian classical music, Hindustani classical music. I would love to share in both the languages, English and Hindi. Hindustani Shastriya Sangeet Shabd Sangrah. This subject I am very much inspired, and I extend my gratitude and deep respect, love to my beloved and respected friend, Mr. Kanhaiyalal Pandey ji, Mr. Kale Pandey. Nowadays, he has proved himself as a versatile musicologist. Earlier, he was a IATS officer, Indian Railway Traffic Service officer. He is all along been a very brilliant in career. He served Indian Railways in the various places and served in different posts. I came in close contact in the year 2009 when he was posted in Kolkata Eastern Railway. He himself learned classical music, so he has proved himself and written, and he produced many glossary of Hindustan classical music books, and he also written Rag Sangeet, that is encyclopedia of cine music, how the ragas were used in the old Hindi film songs, even modern Hindi songs too. So, dear friends, again I thank to Mr. Kale Pandey regarding glossary of Hindustani classical music, that are the primary enunciation of rag. It is also called akar, an alap sung by using the sound a. Side by side, I also love to share in Hindi language too. आ राग का प्रारंभिक स्थापन, इसे आकार भी कहा जाता है.
आ के साथ गाया जाने वाला आलाप. Then abhog. What is abhog? Summing up of the entire development of rag. Normally, the pertains to Dhrupad. हिंदी में आभोग राग के पूरे विस्तार के बाद संक्षेप, सामान्यतः ध्रुपद से संबंधित. थर्ड, आर या आड़ी लय. आ लय 1.5 times of मध्य लय. आर या आड़ी लय जो मध्य लय से 1.5 गुनी लय. देन आगंतुक स्वर, that is a स्वर that creeps into a राग. हिंदी वर्सन आगंतुक स्वर का किसी राग में धीरे से प्रवेश होने वाला स्वर. देन आहत नाद, that is the sounds generated on striking or with conscious effort, like musical notes or swars. आहत नाद हिंदी में आघात द्वारा उत्पन्न ध्वनियां जैसे स्वर. देन आलाप, expansion of swars of a rag in vilambit lay. Gradual unfolding and development of a rag through monosyllables. An introductory movement unaccompanied and without rhythm, that is anibadh, and with a rhythm, that is nibadh alap. हिंदी भाषा में अगर कहा जाए तो आलाप राग के स्वरों को विलंबित लय में विस्तार करना, स्वरों द्वारा धीरे धीरे प्रकट करने के साथ राग का विकास. एक परिचयात्मक प्रस्तुति बिना संगत एवं बिना ताल अर्थात अनिबद्ध तथा संगत एवं ताल के साथ अर्थात निबद्ध आलाप. Then alapchari, the technique of performing alap by a म्यूजिशियन. आलापचारी हिंदी में किसी संगीतकार द्वारा आलाप की प्रस्तुति की विशेष शिल्प विधि. देन आंदोलन. आंदोलन is a gentle swing or oscillation that starts from a fixed note and touches the periphery of an adjacent note, such as in Darbari Kanra. Andolan occurs as ma ga re sa or ni dha ni pa. In Bhairav there is Andolan on both preceding and succeeding swars. हिंदी में आंदोलन वो हल्का दोलन अथवा कंपन है जो एक स्थायी स्वर से प्रारंभ होकर निकटवर्ती स्वर की परिधि को स्पर्श करता है. जैसे राग दरबारी कानरा में मध्यम गंधर्व फिर मध्यम ऋषभ सरज या निषाद धैवत फिर निषाद धैवत निषाद पर उस पे प पंचम के रूप में होता है. भैरव में पिछले तथा अगले दोनों स्वरों पर आंदोलन होता है. देन आरोह. What is आरोह? The ascending or upward moving prefixed sequence of notes in a rag.
हिंदी भाषा में आरोह का अर्थ है जो राग में स्वरों का आरोही या चढ़ता पूर्व निर्धारित क्रम। फिर आवर्त, ए सिंगल कंप्लीट साइकिल ऑफ ए ताल। आवर्त जो ताल का एक पूर्ण चक्र। देन आविर्भाव एवं तिरोभाव। तो आविर्भाव एंड तिरोभाव, sliding of one rag to another, creating a twilight zone or veil, is called tirobhav. And when the performer comes out of the tirobhav situation to clear phases of rag, it is called आविर्भाव। हिंदी में आविर्भाव एवं तिरोभाव जब एक राग का दूसरे राग में धीरे से प्रवेश होता है एवं एक विशेष मध्यवर्ती क्षेत्र उत्पन्न होता है तो उस क्रिया को तिरोभाव कहते हैं। इस क्षेत्र से पुनः उस राग के प्रकट होने की क्रिया को आविर्भाव कहते हैं। देन अभ्यास, repeated use of a स्वर while elaborating a melody। अभ्यास यानी राग लय के विस्तार के समय किसी स्वर का बारंबार प्रयोग। देन accompaniment, संगत, music provided by one or more voices or instruments in a supportive capacity to embellish or supplement the performance of the main artist। Accompaniment, संगत, एक या अधिक गायकों अथवा वादकों द्वारा मुख्य कलाकार की प्रस्तुति में अलंकारिक या पूरक संगीत सहयोग। Then achal, fixed notes which do not have their विकृत फॉर्म्स सा एंड पा। अचल जो स्थायी स्वर जिनके विकृत रूप नहीं होते जैसे सा तथा पा। देन अदायगी, द आर्ट ऑफ प्रेजेंटिंग ए परफॉर्मेंस, जो प्रस्तुतिकरण की कला। देन अध्वदर्शक स्वर, a note which gives an idea of the day-night time of rendering of a rag, that is मध्यम। जो अध्वदर्शक स्वर इस स्वर से राग के गायन वादन के दिन अथवा रात्रि के समय का ज्ञान होता है जैसे मध्यम। देन अलंकार, any kind of embellishment or ornamentation that with the use of swars। तो अलंकार स्वरों द्वारा एक प्रकार का अलंकरण। देन अल्पत्व, stringent use of one or more स्वरस जो इन राग में जो अल्पत्य एक या अधिक स्वरों का किसी राग में अत्यल्प प्रयोग, दो प्रकार, जो अनभ्यास कम से कम प्रयोग और लंघन आरोह तथा अवरोह में किसी स्वर को पूरी तौर पर छोड़ देना। जो अनाभ्यास यूज्ड एज जो स्पर्शली एज पॉसिबल एंड लंघन ड्रॉपिंग द स्वर इंटायरली ईदर इन आरोह और अवरोह। देन अनाहत नाद, अनाहत नाद sound produced without conscious effort, that is self-generated sound of the cosmic realm not audible to the human ear। जो अनाहत नाद वीणा आघात के उत्पन्न हुई ध्वनि अर्थात ब्रह्मांड द्वारा स्वतः उत्पन्न ध्वनि जो मानव कानों द्वारा सुनी न जा सके। देन अंदाज, स्टाइल एंड मैनर ऑफ द
परफॉर्मेंस, अंदाज जो प्रस्तुतिकरण का ढंग. देन अंग, द रूट टू विच ए राग माइट बिलोंग, अंग माने राग का मूल. देन अनियमित स्वर, an additional swar used for enhancing the beauty while rendering a rag, also called anya swar, जो accidental note in western music. अनियमित स्वर किसी राग की सुंदरता बढ़ाने के लिए प्रयुक्त अतिरिक्त स्वर पश्चिमी संगीत का एक्सीडेंटल नोट, जो एक्सीडेंटल नोट इन वेस्टर्न म्यूजिक में लगता है. देन अंश स्वर, अंश स्वर फर्स्ट नोट ऑफ मूर्छना, द सेंट्रल नोट ऑफ ए कॉम्पोजिशन, जो मूर्छना का प्रथम स्वर रचना गीत का केंद्रीय स्वर. देन अंतरा, Antara, that is second section of a rag after establishing sthai, an important and essential part of dhrupad, khayal and instrumental music. अंतरा जो राग का द्वितीय खंड, स्थाई के बाद राग के बाद जो स्थाई के बाद राग का जो द्वितीय खंड, ध्रुपद, ख्याल तथा वाद्य संगीत का महत्वपूर्ण एक आवश्यक अंग. देन अनुस्वर, subsidiary or supportive swars played or sung along with principal swars to create a decorative effect. अनुस्वर जो है मुख्य स्वरों के साथ गाए या बजाए जाने वाले सहायक या समर्थक स्वर, जिनसे प्रस्तुति में निखार आए. देन अनुवादी स्वर, अनुवादी swars next in importance after Vadi and Sambadi swars, also called that assonant notes. अनुवादी स्वर वादी या वादी तथा संवादी स्वरों के बाद अगला महत्वपूर्ण स्वर, इन्हें एसोनेंट स्वर भी कहा जाता है. देन अपरूप राग, a rag of such a character which does not yield a classification under a थाट और मेला. जो अपरूप राग वो राग जिसे किसी थाट अथवा मेल के अंतर्गत वर्गीकृत नहीं किया जा सके. देन अप्रचलित, जो अनकॉमन जिसे कहते हैं, अप्रचलित माने असामान्य. देन अति द्रुत, वेरी फास्ट टेम्पो, जो बहुत तेज द्रुत गति, द्रुत लय. अति द्रुत, अत्यधिक गति की लय. देन अति कोमल, ए स्वर वन श्रुति लेस्ट, a one shruti less than the komal variety of that swar, that is ni in Miyaki Malhar and dha in Darwari Kanra. अति कोमल, किसी स्वर के कोमल रूप से एक श्रुति कम का स्वर, जैसे मिया की मल्हार में नी तथा दरबारी कानरा में ध धैवत. अति तार, ऑक्टेव और सप्तक प्लेस्ड बियॉन्ड तार सप्तक, जो हाई ऑक्टेव. अति तार, तार सप्तक के आगे का सप्तक. देन अति विलंबित लय, टेम्पो दैट लय स्लोअर देन विलंबित. देन अति विलंबित लय, विलंबित से जो धीमी लय. देन औरभ, ए राग विथ 5 स्वर्स इन आरोह अवरोह. औरभ जो वो राग जिसके आरोह अवरोह में 5 स्वरों का प्रयोग हो. देन अवरोह, द डिसेंडिंग और डाउनवर्ड मूविंग प्रीफिक्स्ड सीक्वेंस ऑफ नोट्स इन ए राग. अवरोह में राग में स्वरों का अवरोही अथवा उतरता
पूर्व निर्धारित क्रम। देन बाज, ए स्टाइल और मोड ऑफ ए परफॉर्मर, रीजन और घराना। बाज माने किसी घराने, क्षेत्र अथवा कलाकार की विशेष शैली। बाजा, एनी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट ऑफ एन कॉनोटिंग हारमोनियम, जैसे बाजा एक वाद्य यंत्र, सामान्यतः हारमोनियम के लिए प्रयुक्त शब्द। वानी, ट्रेडिशनल स्टाइल स्पेसिफिक टू ए घराना, जो वानी परंपरागत शैली, घराना विशेष। बैठक, an informal session with the close proximity of the performer, बैठक जो कलाकार के निकट होने वाली एक अनौपचारिक प्रस्तुति। Then वंदिश, a composition that is bound within the frame of a rag. The text, normally in Brajbhasha, should fit into the time of the day. The sounds of syllables should emphasize Vadi Swar and the words should suit the musical genre of the composition. That is Thumri, Khayal, etc. It comprises of जो स्थाई अंतरा संचारी आभोग इन ध्रुपद, स्थाई अंतरा इन ख्याल एंड स्थाई अंतरा मांझा इन इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक। किसी राग की संरचना के अनुसार बनाई गई एक संगीत रचना, सामान्यतः व्रजभाषा में दिन रात के प्रहरों के अनुरूप वादी स्वर का अधिक बल के साथ तथा शब्दों का चयन संगीत प्रस्तुति के प्रकार जैसे ठुमरी, ख्याल के अनुसार। ध्रुपद में ये स्थाई अंतरा संचारी आभोग, ख्याल में स्थाई अंतरा तथा वाद्य संगीत में स्थाई अंतरा माझा से मिलकर बनती है। देन बढ़त, बढ़त a process of expansion of rag, an attempt at phrasing and paraphrasing by the performer with the stipulation for always returning to the straining point. बढ़त जो राग के विस्तार की एक विधि प्रस्तुतकर्ता द्वारा राग के भागों तथा अनुभागों को प्रस्तुत करते हुए राग की सदैव प्रारंभिक अवस्था में पहुंचने का प्रयत्न। देन भजन, a form of devotional composition in a simple musical format which can be rendered easily. भजन जो सुगम संगीत की एक भक्ति रचना। देन बियाड़ या बियाड़ी लय, ए लय 1/3/4 टाइम्स ऑफ मध्य लय, जो मध्य लय से 1.25 गुनी लय। देन बोल, combination of syllables of instruments, words or a lyrics or song. Tabla syllables like dha, dhin, etc. are also bols. जो किसी वाद्य यंत्र की प्रस्तुति के लिए प्रयुक्त स्वर, व्यंजन अथवा किसी गीत के शब्द तबला के लिए प्रयुक्त शब्दों जैसे धा, दीन आदि को भी बोल कहा जाता है। Then bol alap, an alap of a composition interlaced with words, bols from the lyrics, characteristic of आगरा घराना। बोल आलाप गीत के शब्द से गूंथा हुआ आलाप आगरा घराने की विशेषता। Then बोल बांट, singing of bols, words of a song in a variety of ways. Sometimes the entire line is sung in different ways, plays significant role in development of ठुमरी। बोल बांट किसी गीत के बोलो शब्दों को भिन्न भिन्न प्रकार से गाना, कभी कभी पूरी पंक्ति को ही अलग अलग प्रकार से गाया जाता है। ठुमरी के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका। दे बोल बनाओ, a creation of musical phrases with words or syllables, bol
while singing a category of ठुमरी। बोल बनाओ, जो बोल अथवा गीत के शब्दों द्वारा संगीत के अंश बनाना ठुमरी का एक प्रकार। Then boltan, presentation of tans through words of a song or through musical syllables, bols, one out of the three types of tans, boltan, आकार तान एंड स्वर तान। बोलतान जो बोल अथवा गीत के शब्दों को प्रयोग में लाते हुए तानों का प्रस्तुतिकरण। तीन प्रकार की तानों में से एक बोलतान, आकार तान तथा स्वर तान। देन बोल उपज, a stage during elaboration of drut khayal, normally spontaneous when the tabla player makes it lively by playing complex non-preconceived patterns। जो बोल उपज द्रुत ख्याल की प्रस्तुति के मध्य विशेष प्रयोग, जो सामान्यतः तबला वादक ऐसी पूर्व अनियोजित एवं जटिल संरचनाओं में प्रस्तुति में निखार लाता है। देन चैती, चैती that is folk song of Uttar Pradesh, sung in the month of Chaitra, that is March April, expressing the mood of springtime and romantic flavor। The feelings are almost wholly of women but rendered mostly by men, dipped in the colors of Holi। Almost each line of Chaiti has words हो रामा और रामा। जो चैती चैत्र मास मार्च अप्रैल में गाया जाने वाला उत्तर प्रदेश की लोकगीत वसंत ऋतु में प्रेम के विशेष भावों से ओतप्रोत। इस गीत में भावनाएं स्त्री प्रधान होती है, परंतु अधिकतर पुरुषों द्वारा गाया जाता है। होली के रंगों में डूबी हुई चैती की प्रायः प्रत्येक पंक्ति में हो रामा अथवा रामा शब्दों का प्रयोग होता है। Then chalan, an arrangement of notes bringing out the gait or movement of a rag. It includes the time spent on each note while being rendered with an oblique or vakra movement. Like in rag tilak kamod, it is called vakra chalan। चलन जो स्वरों के विशेष विन्यास के अनुरूप राग के आगे बढ़ने की चाल, इसमें प्रत्येक स्वर पर लगने वाला समय भी शामिल रहता है। यदि चाल सीधी न हो तो उसे वक्र चलन कहते हैं, जैसे कि राग तिलक कामोद में है। देन चपक, a loud closed sound produced by full palm on left side drum, बायां, जो तबला बायां जो होता है तबला और लेफ्ट ऑफ पखावज। चपक, बाएं तबले बायां अथवा पखावज की बाईं ओर पूरी हथेली के प्रयोग से उत्पन्न तेज ध्वनि। देन चतुरंग, a composition for vocal music, it has stanzas and dialects sung in 4 ragas and tals। Then this चतुरंग गायन की एक रचना, इसके 4 भाग 4 रागों तथा 4 तालों में गाए जाते हैं। ये 4 भाग निम्न है, जो इस तरह से क्लैरिफाई किया गया है। जो कंपोजिशन जैसे तेना तराना और तिलाना, इसी तरह पाठ, तालों के बोल, स्वर अथवा सरगम, पद या साहित्य। गीत का मूल रूप वर्तमान समय में इनका क्रम निम्न प्रकार से रहता है, जैसे पद या वंदिश के बोल, पखावज अथवा तबला के बोलों जैसे सरगम, तराना, तिल्लाना के बोल। देन चौगुन, 4 times the original tempo, it normally follows दुगुन, डबल और तिगुन 3 times। चौगुन जो मूल लय का 4 गुना, यह
सामान्यतः दोगुनी अथवा तिगुनी प्रस्तुति के बाद होती है। Then cheese, a vocal composition with words rag, tals, etc. जो चीज शब्दों राग तथा ताल में निबद्ध एक गायन रचना। Then दादरा, a form of vocal music of folk origin mainly in Dadra Tal, otherwise in Kaharwa. Then differs from Thumri in Tal Dadra, being a preferred Tal. The techniques of Bol Banao are not used and the tempo is faster than Thumri. इसी तरह दादरा मुख्यतः दादरा ताल अथवा कहरवा ताल में निबद्ध लोक मूल का गायन, जो दादरा ताल को प्राथमिकता देने और बोल बनाव का प्रयोग न होने तथा लय के अधिक होने में ठुमरी से भिन्न। Then धमार, a form of light vocal music traditionally sung in Vrindavan region in a playful mood during Holi and spring season, sung with the accompaniment of Pakhavaj in Dhamar Tal, also called Pakki Hori. As Khayal is followed by light vein Thumri these days, so was Dhrupad was followed by Dhamar in ancient times. धमार जो वृंदावन क्षेत्र में गाया जाने वाला एक प्रकार का सुगम संगीत, जो पारंपरिक रूप से हंसी खुशी के भाव के साथ होली तथा वसंत ऋतु में गाया जाता है। इसमें धमार ताल में पखावज की संगत होती है। इसे पक्की होरी भी कहा जाता है। जैसे ख्याल के बाद आजकल ठुमरी की प्रस्तुति होती है, उसी प्रकार प्राचीन काल में ध्रुपद के बाद धमार की प्रस्तुति होती थी। ध्रुपद, thus dhrup mean fixed and pad meaning text. Dhrupad is an ancient and structured form of classical music dominating North India before the advent of Khayal, normally set to Chartal. Veena and Pakhavaj are traditional accompaniments. Dhrupads are sung in different styles known as जो बाना या बानी, जो ध्रुव अर्थात स्थिर तथा पद अर्थात मूल शब्द। ख्याल के उद्भव से पूर्व उत्तर भारत में प्रभुत्व रखने वाला सुसंरचित जो प्राचीन शास्त्रीय संगीत सामान्यतः चार ताल चौताल में निबद्ध वीणा तथा पखावज इसके मुख्य पारंपरिक संगत वाद्य रहते हैं। ध्रुपद कई प्रकार से गाया जाता है, जिन्हें बाना या बानी कहते हैं। The most massive and sublime form of Indian classical vocal tradition, it follows a fixed pattern of 4 stanzas, sthai, antara, sanchari and abhog, having rigid notes, words and majestic tals. In Dhrupad, there are no decorative touches and only mead and gamaks are allowed. There are no तांस in ध्रुपद, जो भारतीय शास्त्रीय गायन पद्धति का बृहत एवं उदात्त रूप यह 4 पदों में रहता है। स्थायी, अंतरा, संचारी तथा आभोग, जिनमें दृढ़ स्वरों, स्पष्ट शब्दों तथा भव्य तालों का प्रयोग किया जाता है। ध्रुपद में अलंकरण नहीं किया जाता है तथा केवल मीण एवं गमक की अनुमति रहती है। ध्रुपद में तानों का प्रयोग नहीं होता है। Then धून. Dhun is a light presentation free from the formal discipline of the rag. It is inspired generally from folk melodies. धुन जो राग के अनुशासन से मुक्त एक सुगम प्रस्तुति, सामान्यतः लोक धुनों से प्रेरित। द्रुत, फास्ट टेम्पो लय, here the musician expresses his or her joy through the fast rhythmic play.
जो तेज रफ्तार की लय, यहां संगीतकार तेज लय की प्रस्तुति के साथ अपने आनंद को प्रदर्शित करता है। देन गमक, heavy, vigorous and vibrational rendering of notes, a melodic embellishment giving special vibratory effects, a heavy and vigorous oscillation between the two notes. Gamaki Tan takes the same swar in sets of 2 and 3 in a descending order. The swars are arranged in such a manner that they appear to be bouncing. गमक जो गंभीरता पूर्वक स्वरों का उच्चारण, प्रस्तुति, कंपन के प्रभावों के साथ एक माधुर्यपूर्ण अलंकरण, दो स्वरों के मध्य भारी एवं तीव्र गति का कंपन। गमकी तान में एक ही स्वर का 2 या 3 के समूह में अवरोही क्रम में प्रयोग होता है। इनमें स्वरों का संयोजन इस प्रकार किया जाता है कि वे उछलते हुए प्रतीत होते हैं। देन गत, an instrumental composition with the percussion accompaniment. It comprises of sthai, antara, vistar, tans and ends with झाला, जो ताल वाद्यों के साथ एक वाद्य संगीत रचना, इसमें स्थाई, अंतरा, विस्तार, तान के बाद झाला से समापन होता है। देन घराना, घराना इज a school of music, dance representing specific musical dance traditions. The names of gharanas are almost always derived from the town, city, district or state that the founder lived in. Various gharanas have their individualistic approach to the presentation technique and repertoire, जो संगीत नृत्य की विशिष्ट शैली का एक संस्थान अथवा परंपरा, घराने के नाम संस्थापक के कस्बे, शहर, जिले अथवा राज्य के नाम पर आधारित होते हैं। घरानों में एक विशिष्ट प्रस्तुतिकरण शैली, जो तकनीक तथा रचना संचय की प्राधान्यता रहती है। देन घसीट, a technique of sliding over a string from one note to another in plucked instruments like सितार और सरोद, जो घसीट तार वाद्यों जैसे सितार अथवा सरोद में एक स्वर से दूसरे पर खिसकने की प्रक्रिया। इस तरह से इंस्ट्रूमेंट में सारंगी भी है, वायलिन भी है। गुरु, a perceptor who shows the path and guides in written and unwritten nuances of dance music. गुरु एक शिक्षक जो संगीत नृत्य की लिखित अलिखित सूक्ष्मताओं का पथ प्रदर्शक होता है। देन गुरुकुल, a abode or a traditional retreat where a guru teaches and guides her students, disciples. गुरुकुल वो संस्थान जहां गुरु अपने शिष्यों को शिक्षा देता है। गुरु शिष्य, Guru a teacher, Shishya a pupil. Guru Shishya Parampara is the teacher-student relationship creating a person-to-person tradition. गुरु शिष्य, जो गुरु शिक्षक शिष्य शिक्षा प्राप्त करने वाला वाली गुरु तथा शिष्य के मध्य स्थापित व्यक्तिगत शैक्षणिक संबंधों की परंपरा को गुरु शिष्य परंपरा कहा जाता है। हरकत, a short embellishment अलंकार of a स्वर. These resembles that कृंतन, घसीट and खटका. In a khatka or murki, the number of swars above or below the central or principal swar will be equal. If the number is different, it is harkat.
हरकत जो स्वर का एक छोटा अलंकार या कृंतन, घसीट तथा खटका से मिलता जुलता है। खटका तथा मुर्की में मूल स्वर के ऊपर तथा नीचे स्वरों की संख्या समान होती है, जबकि हरकत में ये भिन्न होती है। देन हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और शास्त्रीय संगीत। जो हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत, उत्तर भारतीय संगीत या शास्त्रीय संगीत, इसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत कहा जाता है। देन जाति, ए ग्रुप संपूर्ण सरब एंड औदब, जो सरब और औदब विथ कॉम्बिनेशंस in Aroh and Avaroh according to the number of swars used, 7 for Sampurna, 6 और Sarab and जो सहदब and 5 for औदब। देन जाति एक समूह जो आरोह तथा अवरोह में प्रयुक्त स्वरों की संख्या के विभिन्न संयोगों के अनुसार संपूर्ण, साड़ब तथा औरब, संपूर्ण के लिए 7, सारब के लिए 6 तथा औरब के लिए 5। इसी तरह अब जाति गान, जाति गान ए टाइप ऑफ सिंगिंग प्रायर टू ध्रुपद और प्रबंध गान, जो जाति गान गायन ध्रुपद या प्रबंध गान से पूर्व का एक प्राचीन गान प्रकार। देन जनक जन्य, जनक मीन्स पेरेंट, जन्य इज द डिराइव्ड प्रोडक्ट और चाइल्ड, जनक और पेरेंट ragas have a scale of all 7 swars in both Aroh and Avaroh, whereas the derivative gen ragas may have 1 or 2 swars omitted in the Aroh or Avaroh or both some जन रागास। जनक जन्य, जो जनक का अर्थ है जन्मदाता, जन्य को प्रति उत्पाद अथवा जो संतति कहते हैं। जनक अथवा जन्मदाता रागों के आरोह तथा अवरोह दोनों ही में सभी 7 स्वरों का स्केल होता है, जबकि प्रत्युत्पन्न जन्य रागों के आरोह अथवा अवरोह या फिर दोनों ही में 1 या 2 स्वर अनुपस्थित रहते हैं। कतिपय जन्य रागों में जनक स्केल से भिन्न स्वरों का प्रयोग कर सकते हैं, जिन्हें अन्य स्वर कहते हैं। may use different swars than the parent scale, which are called अन्य स्वars। जनक जन्य system is also known as थाट राग system। जो जनक जन्य व्यवस्था को थाट राग व्यवस्था भी कहते हैं। देन झाला, a melody interpolated with strokes on the chikari strings, final section and the climax of the alap resembles harmonic structures। झाला जो चिकारी तंत्रों पर आघात द्वारा अंत छेपित माधुर्य, अंतिम खंड तथा आलाप का चरण, जो आलाप का चरम हार्मोनिक संरचना से मिलता जुलता। देन जोर, मूवमेंट विथ रिदमिक accompaniment on चिकारी strings, फर्स्ट विदाउट एंड देन विथ तबला। जोर जो चिकारी तंत्रों पर लयबद्ध संगत के साथ गति, पहले बिना तबले के तदुपरांत तबले के साथ। देन जोर राग, a rag created by combining elements of 2 ragas, that is Basant Bahar, Yamni Bilawal, then Nat Bihag, etc. ये जोर राग जो 2 भिन्न रागों के तत्वों के संयोग द्वारा निर्मित जो राग, उदाहरणार्थ जो वसंत बहार, यमनी बिलावल, नट बिहाग आदि। इसी तरह अब नेक्स्ट जुगलबंदी, a duet or presentation of 2 musicians having equal role in the performance. Here 2 instrumentalists play the same
rag together, thus weaving a rich and delicate tapestry with their melodies. And this requires perfect coordination between the two musicians. जो जुगलबंदी एक जुगल अथवा दो संगीतज्ञों की समान स्तर की सहभागिता द्वारा दी गई प्रस्तुति, इसमें दो वाद्य कलाकार एक राग में अपनी कोमल रूपी से जो बुनी मीठी रचनाओं को एक ही साथ प्रस्तुत करते हैं। इसमें दो कलाकारों की बीच पूर्ण समन्वय की आवश्यकता पड़ती है। काल, as different times of the day and night induce different moods, each rag has also been ascribed a time or season, that is kal or time associated with the rendering. काल जैसे दिन एवं रात के विभिन्न समय विभिन्न मन स्थितियां उत्पन्न करते हैं, उसी प्रकार प्रत्येक राग के लिए समय या ऋतु का निर्धारण किया गया है। जो काल जो राग के प्रस्तुतिकरण का समय है। Then Kajri, a folk melody sung by women of eastern UP, sung during rainy season. कजरी जो पूर्वी उत्तर प्रदेश की महिलाओं द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाने वाला मधुर लोकगीत। Then कंपन, tremolo, a tremulous effect on sound. कंपन जो स्वर कंप ध्वनि पर स्वर कंपन प्रभाव। Then kanswar, a grace note or touch note. Normally it precedes or succeeds the principal note and hence called anulang and purvalagna kanswar respectively. Anulagna and purvalagna kanswar respectively. A touch note preceding or succeeding the principal note during a performance. जो कंस्वर, कृपा स्वर अथवा स्पर्श स्वर सामान्यतः यह मुख्य स्वर के पूर्व अथवा पश्चात में प्रयुक्त होता है और इसलिए क्रमशः अनुलग्न तथा पूर्व लग्न कंस्वर कहा जाता है। गाते बजाते समय पीछे अथवा आगे के स्वर को स्पर्श मात्र करना। Then Kirtan. Kirtan, a devotional song theme associated with the Lord Sri Krishna, not strictly adhering to a rag scale and the musical value subdued by sentimental emotions. कीर्तन एक भक्ति गीत प्रसंग जिसमें प्रभु श्री कृष्ण से संबंधित भाव हो। इसमें किसी राग विशेष की स्केल का नियमतः पालन नहीं किया जाता तथा सांगीतिक मूल्य भावनात्मक प्रवाह से दबे हुए रहते हैं। Then खाली, खाली a soundless beat, the stress value being the same as ताली. There is at least one खाली in every ताली. खाली एक ध्वनि रहित ताल अंग इसका प्रतिवलमान ताली के समान ही होता है। प्रत्येक ताल में कम से कम एक खाली अवश्य होती है। देन खरज, मंद्र सप्तक, द लोअर और बास ऑक्टेव, जो मंद्र सप्तक निम्न अथवा बास वेस सप्तक। खटका, a swift execution of a note repeated twice with the grace notes. खटका जो स्पर्श स्वर के साथ दो बार पुनरावृत्ति करते हुए किसी स्वर का तेजी प्रयोग। Then ख्याल, the most prominent classical form of Hindustani vocal music. Then there is no time measures in khayal, an imaginative elaboration of a rag with
lyrical composition consisting of two stanzas, sthai and antara. There are three kinds of ख्याल based on tempo. जो विलंबित ख्याल, बड़ा ख्याल sung in slow tempo in एक ताल 12 beats, धीमा तीन ताल या तिलवाड़ा, झुमरा, रूपक ताल, etc. Then madhya lay, middle tempo, that is chota khayal, chaturang, lakshan, geets, etc. Then drut khayal, faster than madhya lay, chota khayal and tarana. इसी तरह हिंदुस्तानी कंठ संगीत का सर्वाधिक प्रभावशाली शास्त्रीय रूप, इसमें कोई समय माप नहीं है और इसमें दो छंदों की गीत रचना स्थाई एवं अंतरा द्वारा राग को कल्पनापूर्ण विस्तार दिया जाता है। लय की गति के आधार पर ख्याल के तीन प्रकार होते हैं। पहला विलंबित ख्याल, बड़ा ख्याल धीमी अथवा विलंबित लय में एक ताल, धीमा ताल या तिलवाड़ा, झुमड़ा, रूपक ताल आदि में निबद्ध किया जाता है। दूसरा मध्य लय, छोटा ख्याल, चतुरंग, लक्षण, गीत आदि। तीसरा द्रुत ख्याल, मध्य लय से तीव्रतर, छोटा ख्याल एवं तराना। देन कोमल फ्लैट नोट, gentle tender, when a note is halfway lower in scale than the Suddha Swar, pure note, it is called Komal Swar. Flat note, the four flat notes in 12 Swar scale, Re, Ga, Dha and Ni, जो कोमल स्वर, जो कोमल शांत, जब कोई स्वर शुद्ध स्वर से आधी दूर का होता है तो उसे कोमल स्वर कहा जाता है। 12 स्वरों के स्केल में 4 कोमल स्वर जैसे रे, गा, धा तथा नी। देन कृंतन, कृंतन इन string instruments, the art of production of two notes in quick succession in a split second with the higher note coming first. That कृंतन तार वाद्यों में त्वरित क्रम तथा अत्यल्प समय में दो स्वरों के उत्पन्न करने की कला, जिसमें उच्च स्वर पहले आता है। इसी तरह से देन आते हैं कुवार या कुवारी लय। ए लय 1 1/4 टाइम्स ऑफ मध्य लय। कुवार या कुवारी लय जो मध्य लय से एक सवागुनी लय, जो देन लाचारी, a folk song from eastern UP and बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश व बिहार का एक लोकगीत लाचारी होता है। देन लरंत, a competitive or combative pattern of expressions between two performers. लरंत जो दो कलाकारों के मध्य प्रतिस्पर्धात्मक अथवा दंडात्मक रूप में अभिव्यक्ति। Then लहरा, a melodic pattern performed as an accompaniment for the solo tabla performance by sarangi support or by harmonium. जो लहरा एक एकल तबला वादन के साथ, जो स्वतंत्र तबला वादन, सोलो तबला वादन के साथ सारंगी अथवा हारमोनियम द्वारा माधुर्यपूर्ण संगत की प्रस्तुति। देन लक्षण गीत, a perspective example for rag through which a listener is supposed to derive the basic features of a specific rag. लक्षण गीत जो किसी राग के नियम प्रतिपादित करने वाला उदाहरण, जिसके द्वारा श्रोता किसी राग विशेष की मूल संरचना का ज्ञान प्राप्त कर सकता है। देन लरज, लोएस्ट ऑक्टेव, लरज जो निम्निष्ठ सप्तक। The lay, in music the speed, pace or tempo of movement in a song or bandish is called lay. संगीत में समान गति या चाल को लय कहते हैं। किसी गीत या बंदिश की गति, रफ्तार या चाल। देन लयकारी, rhythmic virtuosity with
playfulness. These comprises of the uttering of the lines of the lyrics at varying speeds of beats like 2, 3 or 4 times, दुगुन, तिगुन और चौगुन and so on, जो कलाकारी युक्त लयात्मक गुणवत्ता इसके अंतर्गत पद की पंक्तियों की ताल की 2, 3 या 4 गुना बढ़ती लय दुगुन तिगुन या चौगुन के साथ प्रस्तुति होती है. Then मांझा. In instrumental music, the middle portion between स्थाई and अंतरा virtually an extension of स्थाई. जो मांझा वाद्य संगीत में स्थाई तथा अंतरा के मध्य का भाव वास्तव में स्थाई का विस्तार. Then मार्गी संगीत. Ancient Vedic music, गंधर्व गान. जो वेदकालीन प्राचीन शास्त्रीय संगीत गंधर्व गान. Then matra, a measure of time in music, the time between two beats, a specific musical beat stressed, tali or unstressed khali, within the cycle of the tal. Then subdivision of a tal, जो संगीत के सामने नापने का पैमाना दो तालियों के बीच का समय किसी ताल के चक्र में एक विशिष्ट संगीत में पुनरावर्ती जो आघात प्रतिबलीय ताली अथवा बलविहीन खाली किसी ताल का उपभाग. देन मध्य लय, इंटरमीडिएट पेस और मीडियम टेम्पो, मध्यवर्ती चाल की लय. मध्य सप्तक, the middle octave in the scale of 3 octaves invariably used in vocal and instrumental music. 3 सप्तकों के स्केल का मध्य भाग कंठ संगीत एवं वाद्य संगीत में सदैव प्रयोग किया जाता है. Then मीड़. मीर जो हम लोग आते हैं मीर पे, that glissando glide from one note to another, then faintly going over the intermediate notes, a rendering of two notes in such a way that there is no gap between them, a smooth movement or a swar in ascending or descending order to another swar. जो मीर एक स्वर से दूसरे स्वर पर उनके मध्य उपस्थित स्वरों को स्पर्श करते हुए सहज पलायन किन्हीं दो स्वरों को इस प्रकार गाने बजाने को ही मीर कहते हैं, जिनके बीच में कोई रिक्त स्थान न रहे. राग के आरोही अथवा अवरोही क्रम में एक स्वर का दूसरे स्वर पर सहज गमन, जैसे पारे. फिर मेल पद्धति, ए स्केल स्वर्स इन असेंडिंग ऑर्डर इन ए मेलोडिक यूनिट. जो वेंकटमुखी 17th century formulated 72 male ragas, that is parent rags also called, then Melkarta ragas, then 10 third system of Pandit Vishnu Narayan Bhatkhande, early 20th century, was inspired from Carnatic 72 Melkarta system of Venkatmukhi. किसी माधुर्यपूर्ण रचना में आरोही क्रम में स्वरों का एक पैमाना. वेंकटमुखी 17वीं शताब्दी ने 72 मेल रागों को सूत्रबद्ध किया. इन्हें जनक राग तथा मेलकर्ता राग भी कहते हैं. पंडित विष्णु नारायण भातखंडे प्रारंभिक 20वीं शताब्दी की 10 थाट पद्धति वेंकटमुखी के कर्नाटक संगीत की 72 मेलकर्ता पद्धति से प्रेरित थी. इसी तरह अब मेरुखंड,
An alankar like palta with the musician bringing out all the possible arithmetical combinations of notes, but unlike palta, here a note is used only once. मेरुखंड पलटा की तरह का एक अलंकार जिसमें प्रस्तुतकर्ता स्वरों के सभी संभव गणितीय गणितीय स्वर संयोगों को प्रस्तुत करता है, परंतु पलटा के विपरीत इसमें एक स्वर एक ही बार प्रयोग होता है. Then Mishra mixed the introduction of melodic movement foreign to the established rag. मिश्रित जो माधुर्य उत्पन्न करने के लिए स्थापित राग में विजातीय स्वर प्रयोग का समावेश. Then मोहरा, playing a group of bowls with or without tihai or getting the theka or some of a tal, that is mukhra. ताल का मोहरा जो ताल का ठेका या सम पकड़ने के लिए किसी बोल समूह को तिहाई या बिना तिहाई के बजाना मुखरा कहते हैं. देन मूल स्वर ग्रह स्वर, फर्स्ट और रूट नोट ऑफ ए म्यूजिकल कॉम्पोजिशन और ए राग. जो ग्रह स्वर संगीत रचना राग का प्रारंभिक स्वर आधार स्वर. देन मूर्छना, Murchana in a rag in a group of 5, 6 or 7 notes, then sagives the bass line with reference to which other notes depending upon their distances or heights derive their identity. Sa can be fixed anywhere according to the convenience of vocalist or instrumentalist. By changing the position of sa in a rag, there is emergence of the scale of a new rag which is called murchana. मूर्छना जो किसी राग में 5, 6, 7 स्वरों के समूह में सा का स्थान आधार प्रदान करता है, जिससे दूरी अथवा ऊंचाई से अन्य स्वर अपनी पहचान पाते हैं. सा का निर्धारण गायक अथवा वादक अपनी सुविधानुसार कहीं पर कर सकता है. सा के स्थान परिवर्तन से एक नए राग के स्केल का उद्भव मूर्छना कहलाता है. देन मुखड़ा, मुखड़ा first time of a song, ठुमरी or a ख्याल composition. It is repeated in almost every आवर्तन cycle in vocal music. मुखड़ा जो ठुमरी अथवा ख्याल को स्वरबद्ध करने में प्रयुक्त गीत की प्रथम पंक्ति कंठ संगीत में प्रायः प्रत्येक आवर्तन में इस पंक्ति की पुनरावृत्ति की जाती है. Then murki, an alankar used in lighter forms like thumri, tappa, tarana, etc. but sparingly used in khayal, a brief and brisk ornamentation around a note like a knot of swars delivered very fast, bringing it close to another alankar khatka, making a semicircle with 3 notes at a fast tempo, that is re, ni, sa and dha, ma, pa. गायन के सरल रूपों जैसे ठुमरी, टप्पा, तराना आदि में प्रयोग किया जाने वाला एक अलंकार जिसका प्रयोग ख्याल गायन में विरलता से होता है, एक स्वर का छोटा किंतु अत्यंत त्वरित अलंकरण स्वरों की एक गांठ जैसा, जिसका अत्यंत त्वरित प्रेषण इसे दूसरे अलंकार खटका के निकट ले जाता है. 3 स्वरों में द्रुत गति में एक अर्धवृत्त बनाना, जैसे रे, नी, सा तथा ध, म, प. Then नाद, sound of any kind, musical, non-musical,
Then unmusical, two types. Ahatnad produced by striking one subject against the other. Then second, Anahatnad produced without the conscious effort of man, a sound inaudible to human ear, cosmic. किसी भी प्रकार की ध्वनि सांगीतिक, असांगीतिक, गैर सांगीतिक, इसके दो प्रकार है। पहला आहतनाद एक वस्तु से दूसरी से टकराने पर उत्पन्न ध्वनि। दूसरा अनाहत नाद मनुष्य द्वारा चैतन्य अवस्था में बिना किसी प्रयास के उत्पन्न ध्वनि, मनुष्य के कानों की अश्रवणीय ब्रह्मांडीय। Then nom tom, syllables employed in development of rag in alap, alapchari in ध्रुपद singing. नोम तोम ध्रुपद गायन में किसी राग की बढ़त में आलाप, आलापचारी में प्रयुक्त अक्षर समूह। देन न्यास, ब्रीफ हॉल्टिंग इन ए कॉम्पोजिशन, न्यास किसी रचना में विश्रांति। देन न्यास स्वर, the swar of a rag which is used as a point of rest by the musician, the appropriate swar on which alapan phrases are supposed to end. न्यास स्वर जो राग का वो स्वर जिस पर प्रस्तुत करता ठहर सकता है। विश्रांति दायक स्वर वो उपयुक्त स्वर जिस पर आलापन भाग को समाप्त करना होता है। Then packed, small that identifiable phrases of a rag, दो पकड़ जिसे कहते हैं, small identifiable phrases of a rag, जो राग के परिचयात्मक स्वरों के समूह। Then पलटा, forward reverse note patterns, जो सीधी उल्टी स्वर संरचना। Then पंडित, an honorary title given to an expert musician, dancer, learned, a master musician, dancer, उस्ताद, पंडित और उस्ताद। पंडित और उस्ताद किसी विशेष संगीतकार नर्तक को प्रदान की जाने वाली एक मानद उपाधि। विना अभिज्ञ, एक प्रशिक्षित संगीतकार, नर्तक, उस्ताद। So dear friends, in this way, so I am always present through Meta Facebook Live. So these were the glossary of Hindustani classical music. तो आप सबों से मैं पूर्ण विराम अब इजाजत लूंगा, काफी रात हो चुकी है। इसी तरह से मैं आते रहता हूँ। गौतम कोमल गांधार की उपस्थिति आप सबों के बीच, आप सबों को रूबरू करवाना पसंद करते रहता हूँ। शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि। वेरी गुड नाइट।